गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। So in our previous class we have started chapter number 4 of statistics, that is organization of data, right? And in the chapter we have started the chapter with the meaning of classification and the objectives and requisites of a good classification. We have completed these two topics in our previous class. Now today we are going to start with the methods of classification. I remember yesterday I have given you a task to read the 4 types of classification. So number 1 is geographical classification. I am waiting for the responses from your side. Who can read and explain the meaning of geographical classification? It is very simple. Very good. Yes, Karan, unmute and speak. Yes, ma'am. Ma'am, when the geographical classification, when the data is classified according to geographical location or region, it is known as geographical classification. When population of different states is presented, we say that it is according to geographical classification. मैम इसका मतलब है मैम जब हम कोई डाटा क्लासिफाई करते हैं तो उसका एक टाइप होता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हम पॉपुलेशन देख रहे हैं तो इंडिया के अंदर जितनी स्टेट्स है तो हर स्टेट्स को लिख देंगे और उसके आगे उसकी पॉपुलेशन लिख देंगे। ये मैम ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसमें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सिंपल सा है। When the data is classified according to the geographical location or region, it is known as geographical classification. अगर मैं बात करूं आपकी स्कूल में जो बच्चे हैं उनको एरिया वाइज क्लासिफाई कर दूं कि बीकानेर सिटी से इतने बच्चे आ रहे हैं, पवनपुरी से इतने आ रहे हैं, जेएनवी से इतने आ रहे हैं, गंगाशहर से इतने आ रहे हैं, अलग अलग एरिया वाइज मैंने क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे जैसे स्टेट वाइज मैंने पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर दिया। दिस सिंपल क्लासिफिकेशन इज नोन एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ी चीजें नोटिस करते जाना, नेक्स्ट चैप्टर में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल नंबर लिखा जाता है कि जैसे इस चैप्टर की ये फर्स्ट टेबल है तो टेबल नंबर 4.1, और उस टेबल का नाम लिखा जाता है कि ये टेबल क्या बता रही है, पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और नीचे लिखा जाता है कि ये डेटा कहाँ से आया है, दिस इज नोन एज सोर्स। ये मैंने आपको अभी क्यों बताया, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज टेबुलेशन एंड इन दैट चैप्टर यू विल हैव टू मेंशन दीज थिंग्स आल्सो। चलिए नेक्स्ट, chronological classification. Raise your hands who can read and explain chronological classification. Anyone other than Karan? Be quick, raise your hands. Yes, Falguni. Chronological classification or temporal classification. When data is classified with respect to different periods of time, the time of classification is known as chronological classification. For example, population of Delhi for different years can be given according to chronological classification. Is it okay? Yes, Falguni, explain. यस मैम, इसके अंदर ये होता है कि डेटा जो क्लासिफाई होगा वो पीरियड डिफरेंट टाइम पीरियड के बेसिस पे डेटा क्लासिफाई होगा। लाइक जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है 1951 में इतनी पॉपुलेशन, 1961 में इतनी पॉपुलेशन। तो जो इसमें डेटा क्लासिफाई होता है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई होता है, तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन व्हेन वी आर क्लासिफाइंग द डेटा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग ईयर्स की बात कर लिए मैंने। 2014 में व्हाट वाज योर रिजल्ट, 2015 में क्या था, 16 में क्या था, 17 में क्या था। जब मैंने ऐसे टाइम्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया है, दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज chronological classification, or you have to keep in your mind that another name of this classification is temporal classification. Now have a look on the third one, qualitative classification. Be quick everyone, give it a try. So qualitative classification, who is going to explain this part? Raise your hands for explanation. Yes, be quick everyone. Lovely will explain. Yes, Lovely, unmute and speak. Be quick, Lovely, unmute and speak. You are having only 2 seconds. Unmute yourself. Nahi kiya, I will be forwarding the link to your parents.
Praveen, beta unmute and speak. Explain the second point. Sorry, third point. Praveen Agarwal. No response. Okay, I will talk to you after the class. May I? Yes. Qualitative classification. In qualitative classification, data is classified on the basis of descriptive characteristics or on the basis of attributes like sex, literacy, region, caste, education, etc., which cannot be quantified. मैम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि मेल एंड फीमेल का क्लासिफिकेशन होगा तो वो सेक्स एज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर होगा, तो वो होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसके अंदर क्वांटिटी का रोल नहीं होता. बिल्कुल, वेरी गुड. जब हमने उनकी क्वालिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया, फॉर एग्जांपल लिटरेसी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, एजुकेटेड के अकॉर्डिंग. अब पॉपुलेशन है उसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेल्स एंड फीमेल्स. क्लास में स्टूडेंट्स है, मैंने उनकी 2 लिस्ट बना दी, बॉयज एंड गर्ल्स. तो जब मैंने उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब इसमें होता है एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन. I have picked only one attribute while classifying the population. For example, students, then girls and boys. Population, then male and female. Population, educated, uneducated. Population, literate, illiterate. सिर्फ एक ही attribute अगर pick कर रही हूँ, then this classification will be treated as simple. And manifold classification is the classification where more than one attribute are explained. Have a look. Population, then I have written males and females. फिर males में भी literate और illiterate, female में भी literate और illiterate. Then Hindu and non-Hindu. मैंने क्या किया, एक साथ बहुत सारे attributes को divide कर दिया. अब इस हिंदू नॉन हिंदू में भी मैं क्या कर सकती हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे करके जब इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, सब क्लासेस बनाते रहते हैं. दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. दिस कैन बी आस्क्ड in the form of MCQ. Next, quantitative classification. ऐसा classification जिसकी study statistics में होती है. The classification on the basis of numerical characteristics. Have a look everyone. जब हम क्या करते हैं, जैसे कि height, weight, income, expenditure, production और sales, इनको classify करते हैं तो ये numerically होता है. That's why this is known as quantitative classification. Now age. From 10 to 12 years there are 150 students, from 12 to 14 there are 130. ऐसे करके हमने कुछ भी नंबर्स में बता दिया, आपके मार्क्स बता दिए, आपका परसेंटेज बता दिया, और उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो ये 4 क्लासिफिकेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली. So the classification is given. When we classify the ages of students in school, then we always express the ages numerically in terms of numbers. और जो भी numerical classification है वही यहाँ पे आपका quantitative classification बनेगा. अब इसमें 2 चीजें आएंगी, variable and frequency. Variables means the attribute जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. जैसे मैं स्टूडेंट्स की एज बताना चाहती हूँ तो एज विल बी द वेरिएबल. एज क्या है, वेरिएबल है, ठीक है. और फिर अगर मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोई एक एज कितने टाइम्स रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. वेरिएबल इज द एट्रीब्यूट जो आप बेसिकली बताना चाहते हैं. जैसे मैंने आपके मार्क्स लिए तो 100 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 100 विल बी द वेरिएबल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 100 मार्क्स इज फ्रीक्वेंसी. I hope this is clear to everyone. Variable is the attribute which is used and frequency is the number of time the particular attribute is repeating itself. Now have a look. Concept of variable. We have already discussed the concept of variable in chapter 3 also, right? Have a look everyone. The term variable is derived from the word vary. Vary का मतलब है change होना, differ or change. The term vary which means change. This can be asked in MCQ. So variable is the characteristics
or the quantity or the attribute whose value changes from one investigation to other. अगर मैं बात करूं आपके टर्म 1 में इकोनॉमिक्स के मार्क्स तो इट इज वेरिएबल एंड टर्म 2 में जो मार्क्स आएंगे वो भी वेरिएबल है और टर्म 1 से टर्म 2 तक जाते जाते आपके मार्क्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, आपके मार्क्स बदल जाएंगे, राइट. सो वेरिएबल इज द एट्रीब्यूट व्हिच वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर. वैल्यू वेरी करती रहती है और ये वेरी का मतलब है चेंज होना. नाउ हैव अ लुक. द डिफरेंस इन वैल्यू मे बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल आइटम्स, प्लेसेस और टाइम. अलग अलग इंडिविजुअल के मार्क्स भी अलग अलग होंगे, अलग अलग प्लेसेस की स्टडी करोगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे टाइम के अकॉर्डिंग. Each value within such range is called variate. उस रेंज के बीच में जो जो वैल्यू होगी उसको वेरिएट कहेंगे. कुछ एग्जांपल्स गिवन है. प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट. प्राइस की बात करूं तो प्राइस एक वेरिएबल है, ठीक है. अलग अलग कमोडिटीज को पिक करूंगी तो अलग अलग प्राइस आएगी. एज भी वेरिएबल है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग एज आएगी. सिमिलरली बहुत सारे और भी वेरिएबल्स हैं जैसे कि हाइट, वेट, वेजेस, एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड योर मार्क्स. ऑब्वियसली इट मे बी नोटेड दैट डिफरेंट वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. अलग अलग वेरिएबल अलग अलग यूनिट में मेजर किए जाएंगे. आपकी एज मेजर की जाएगी इन द ईयर्स, हाइट मेजर की जाएगी इंचेस या सेंटीमीटर्स में, वेट इन केजीज, इनकम इन रुपीज. तो सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है. अब आपका मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल समझिए ध्यान से. इसके बेसिस पे आपकी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज बनेंगी जो आपको आगे स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर में पढ़नी है. So variables which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as discrete variable. ऐसे वेरिएबल जिसमें आप सिर्फ एक एग्जैक्ट वैल्यू को ही लिख सकते हो, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को लिखना, उनको नोट करना पॉसिबल नहीं है. उन वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहेंगे. हैव अ लुक क्या कहा हुआ है यहाँ पे आगे इसके बारे में. नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर डिस्क्रीट वेरिएबल एज दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल कि हमारी क्लास में 1.7 स्टूडेंट्स हो? पॉसिबल ही नहीं है. क्या ये पॉसिबल है कि मेरी क्लास में 12.5 स्टूडेंट्स हो? डेफिनेटली नो. या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे या क्लास में 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे. फ्रैक्शंस अवेलेबल नहीं. तो जब फ्रैक्शंस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिए मैंने 0, 1, 2, 3. ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली है. तो 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है? 5 फैमिलीज में. देन आफ्टर ये फ्रीक्वेंसी है. 0 चिल्ड्रन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स, बिकॉज देयर आर 5 फैमिलीज इन विच देयर इज नो चिल्ड्रन, है ना. घर में शांति का माहौल है. फिर एक बच्चा 7 फैमिलीज में है, तो 2 चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज एंड 3 in 3 फैमिलीज. ये जो टोटल है ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है जो आपने यहाँ पे लिखा है कि 40 फैमिलीज की स्टडी है तो ये नंबर भी 40 ही आना चाहिए. आगे इसको बनाना भी सीखेंगे हम कि कैसे ये टेबल्स बनती है. इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, continuous variables. Those variables which can take all possible values, integral as well as fraction. Integral value भी ले सकते हैं, fractional value भी ले सकते हैं given range में, are known as continuous variables. कैसे? जरा देखिए. Height or weight of individuals can be with any value within the limits. अगर 40 to 45 है तो आपकी हाइट 40 भी हो सकती है, 40.2 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है, 41.7 भी हो सकती है, 41.9 भी हो सकती है, राइट. तो और एग्जैक्ट 41 भी हो सकती है. तो इंटीग्रल वैल्यू को भी पिक कर लिया, फ्रैक्शनल वैल्यू को भी पिक कर लिया और रेंजेस बना दी हमने. 40 to 45 का एक ग्रुप है, 45 to 50 का अनदर ग्रुप, 50 to 55 का अनदर ग्रुप. और फिर हमने इसमें लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव the height in between 40 to 45 centimeters. ठीक है. तो ये आपका बन गया है continuous variable. तो हमने ये 2 important पार्ट अभी रीड किए, discrete variable and continuous. Yes, now have a look. 40 to 45 then 45 to 50. अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि 45 की वैल्यू किस में इंक्लूड होगी, इसमें या फिर नीचे वाली में. तो 45 की आती है इस पार्ट में. 45 to 50 यानी 45 और 45 से लेके 49.9 तक की वैल्यू यहाँ आएगी. 50 की वैल्यू अगेन नेक्स्ट पार्ट में आएगी. ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है. आगे हम इंक्लूसिव भी बनाना सीखेंगे. ये एक्सक्लूसिव सीरीज है. एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट्स की वैल्यू इस पार्ट में इंक्लूडेड नहीं होती.
अपर लिमिट किसको कहते हैं? देखिए, दीज ऑल आर लोअर लिमिट्स एंड दीज ऑल आर अपर लिमिट्स। तो एक्सक्लूसिव सीरीज ऐसी होती है जिसमें अपर लिमिट्स की वैल्यू इस पार्ट में इंक्लूडेड नहीं होती, वो नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूडेड होती है। और एक एक्सक्लूसिव सीरीज बताती हूँ आपको किस टाइम की बनती है एक्सक्लूसिव। वैसे हमें ये सब कुछ आगे पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में। एक्सक्लूसिव सीरीज होगी जिसमें 40 to 45 के बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ होगा आपके लिए 46 to 50, और उसके नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां लिखा हुआ होगा 51 to 55। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके 46 से लेके 50 तक की सारी वैल्यू इस पार्ट में आएगी। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, इस पार्ट में आएगी, और 51 से 55 तक वाली नेक्स्ट पार्ट में आएगी। फिर वापस आपका 56 से 60 तक का बन जाएगा। तो वो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है जिसमें अपर लिमिट की वैल्यू उसी में इंक्लूडेड होती है। कैसे दोनों सीरीज बनाते हैं ये सब हम सीखेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़े। तो हमने पढ़ लिया है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को, राइट। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल जहां पे सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, एंड कॉन्टिन्यूअस वेयर यू कैन टेक बोथ द वैल्यूज, एक रेंज में, रेंज डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद वैल्यूज को लिखेंगे। चेंज इन वैल्यूज, these variables increase in complete number, complete number में ही increase होंगे, whole number में ही increase होंगे, but जो कॉन्टिन्यूअस वाले हैं वो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं और कंप्लीट नंबर में भी। डेटा कलेक्शन काउंटिंग करके वहां पे मेजरमेंट से काउंटिंग होगी, वहीं पे तो कंप्लीट एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और मेजरमेंट के टाइम पॉइंट्स में भी आ सकता है। हाइट मेजर कर रहे हूँ, वेट मेजर कर रहे हूँ, काउंट नहीं करते हैं हाइट और वेट को, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करते हैं। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। हाइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स या वेट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है? ये आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। सिंपल सा पार्ट था। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक वैल्यू किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टाइम्स आ रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सपोज क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 9 के 70 मार्क्स है, तो 70 मार्क्स इज अ एट्रीब्यूट और वेरिएबल and 9 is the frequency कि 9 students have got 70 marks. It means 70, the score 70 is repeating itself 9 times, so 9 will be treated as frequency. Okay, अगर क्लास में 46 weight 7 students का है, 46 the weight is attribute and 7 number 7 because 7 students are having same weight, ये 7 उसकी frequency होगी। फिर frequency distribution क्या होती है? A table in which the frequencies and the associated values of variables are written side by side is known as frequency distribution. When I will prepare a table in which I will note down the variable on one side and frequency on another side, the table will be treated as frequency distribution table. जैसे मैं अगर आपके सामने एक टेबल बना दूं जिसमें एक साइड मैंने लिख दिया है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और दूसरी साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गॉट दीज मार्क्स, इसी की बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, तो ये फ्रीक्वेंसी मैं एक साइड लिख दूं और दूसरी साइड लिख दूं मैं ये एट्रीब्यूट, तो वो जो टेबल बनेगी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। इट कैन बी डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्टैटिस्टिकल सीरीज। What is it? It is the arrangement of classified data in some logical order according to size, according to time of occurrence, or according to some other measurable or non-measurable characteristics. Simple. What is a statistical series? A simple arrangement of classified data. जो आपने डेटा को क्लासिफाई किया है उसको आप कुछ लॉजिकल वे से अरेंज कर दोगे। वो वे कुछ भी हो सकता है, साइज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, किसी भी वे में अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उसको बता दिया है, तो वो जो आपने प्रेजेंटेशन किया है दैट विल बी ट्रीटेड एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सीरीज को प्रिपेयर करते हैं ताकि कलेक्टेड और क्लासिफाइड डेटा को प्रॉपर प्रेजेंट किया जा सके। एग्जाम्पल गिवन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर आप बता देते हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज बनाई जाती है, जिसमें ये तो आपके पूरे लास्ट चैप्टर तक आपके साथ चलेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और ये जो टाइम सीरीज, स्पेशल सीरीज और कंडीशन सीरीज है, ये हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, इनको बस रीड करके।
So your task is to read the classification on the basis of characteristics, and then tomorrow we will discuss it on the basis of construction. Is it okay to everyone? Okay, all right. Have a nice day, everyone. Enjoy yourself. See you in the next class.